Let's start our session. Close your eyes, join your hands. Start chanting Omkar. Sandam, keep your mics and okay. Okay. Is there any doubt related to what we have done earlier? Any doubt? No doubt. No, shall we continue? No, ma'am. Okay. So we discussed about 3 main terms. Okay. What were those terms? First one was discrimination. The other one was prejudice. And the third one was Stereotype. Yes, very good. Stereotype. And in the first chapter, we have learnt about diversity. Okay. So, altogether, we have learnt about 4 terms. First one, in the first chapter, we have learnt about diversity. Then in the second chapter, many more terms we have learned. We have studied about stereotype, about prejudice, about discrimination. Okay. So, let us see how discrimination takes place and how do we feel when discrimination takes place. I am presenting my screen, beta, okay? My humble salutations at the lotus feet of Bhagwan Baba. We are here, okay? This we have already done. Stereotype. Okay, this picture is in your book. Have you seen in your book? Okay, Janvi, wait. Yes, ma'am. Okay. Yes, People say all sorts of things. This is regarding stereotype. Okay, we have discussed in. मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, प्रेजेंटेशन तो हो रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही. Just wait. Is it visible? Yes, ma'am. No, ma'am. दिख रही है स्क्रीन. मेरी स्क्रीन पे कोई फोटो दिख रहा है आपको? Anything? Yes, ma'am. मैम दिख रहा है. Okay, okay. Wait, just a minute, beta. I'm going back and I will start again. Okay? Again, I am presenting my screen. Okay? Now, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Okay. Yes. Okay, so this is. बेटा किसको नहीं दिख रहा है? Who is not able to see my screen? हाँ? तन्मय. तन्मय? मैम क्योंकि कुछ लोग है ना आपकी फोटो में पेन करके रखते हैं और जो आप प्रेजेंटिंग कर रहे हैं तो वो नहीं दिखता. Yes, of course. मेरी फोटो को पिन किया होगा बेटा. मेरी फोटो के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक पिन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. उसको अनपिन कर दो, उस पे वापस से पिन करोगे ना तो वो हट जाएगा. एंड यू विल सी माय स्क्रीन. हाँ, यस. ऐसा कई बार हो जाता है बाय मिस्टेक ऑल्सो वी पिन समबडी, तो वो आपको फुल टाइम स्क्रीन पे वही दिखाई देगा. ठीक है? तो चेक कर लिया करो. मेरे को पिन कर दिया होगा या किसी को भी आप पिन करोगे ना उसकी पिक्चर पे क्लिक करके तो वही आपको पूरे टाइम में दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा. गॉट इट? चलो
Yes, So this ma'am. is about stereotype. We have discussed that day. Stereotypes mean when we When we put fit people into people one into image. one image, we create a stereotype. Yes. Now we have seen about girls and boys, how we discriminate them. What are the stereotypes about girls and boys? Okay, about villagers and city people. So that we have discussed about it. And in your book, these examples are given. Okay. Like when we see such type of people, we create stereotype. क्या stereotype बना लेते हैं हम इन लोगों को देखकर सोचते हैं ये किसी भी चीज में अच्छे नहीं होंगे, इसको ये चल नहीं सकता, इसका मतलब इसको कुछ भी नहीं आता है करने, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये इस ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो इसका दिमाग भी ठीक से नहीं चलता होगा, है ना। हम एक चीज को देखकर बहुत सारी चीजों के बारे में पहले से ही अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं। ओके, वी डिसाइड आवरसेल्व्स ओनली, सिर्फ देखकर तो हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। दो दीज पीपल आर वेरी गुड एट डिफरेंट प्लेसेस, वो कई और जगह पे बहुत अच्छे होंगे, बट स्टिल क्योंकि हमने सिर्फ उनको फिजिकल वे में देखा है कि उनकी क्या कमी है, व्हाट आर दी लूप होल्स, व्हाट आर देयर वीकनेसेस, so we decide according to that only, we make our mind according to that only। तो हम इस तरीके से इनको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं स्टीरियोटाइप क्रिएट करके, एंड वी थिंक दैट दीज पीपल कैन नॉट बी लाइक अस, ये हमारे जैसे नहीं हो सकते। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। Now inequality and discrimination that we have discussed, discrimination takes place on the basis of various reasons like languages, religion, region, custom and practices. Okay, this we have discussed already. Now here, we were here on being discriminated. Now we discuss two, three things like people who are engaged in different kinds of work for their livelihood. They are being discriminated by the people, those who are from upper caste or those who are doing good jobs. Okay, like job of cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are considered as dirty or impure. ठीक है, ऐसे कामों को हम बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, और वैल्यू नहीं देने से क्या होता है, इनको हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वी डोंट पे रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, हमारे लिए ये वैसे ही हो जाते हैं। लाइक हम अपने घरों में सर्वेंट्स को बहुत ज्यादा इल ट्रीट करते हैं समटाइम्स, हम उनके साथ में बैठते नहीं, उठते नहीं, ठीक है, दैट इज यू आर क्रिएटिंग डिफरेंस, ओके। बट जब हम उनसे अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, देन दे गेट हर्ट, तब उनको हर्ट होता है। वैसे ही जैसे आपसे अगर कोई अच्छे से बात नहीं करे तो, ठीक है, तो हम ऐसे कामों को क्या सोचते हैं कि ये काम गंदे हैं, ये डर्टी हैं, इम्प्योर हैं। बट द रीजन बिहाइंड दिस इज दिस that we are following a caste system in our society, ठीक है। अब let us understand what is caste system. In India, we know that since ancient times we are following caste system, ठीक है, जातिवाद, जाति प्रणाली, ठीक है, वर्ण सिस्टम, these are the other names of caste system. तो caste system के according we know that the higher caste is the Brahmins, caste of Brahmins. Okay, beta keep your mic mute. Okay, so caste system कि जब हम लैडर को देखते हैं, सीढ़ी को देखते हैं, तो we find that the Brahmins are in the topmost position. Then coming to that downwards, we see that Kshatriya or Rajput, second number, then Vaishyas, those who are business class, they are coming to the third number, and the last one is the Shudras or the people who are called as untouchables or the people who used to do such type of work. So earlier in the beginning, okay, in earlier time there was no caste system as we are seeing in the society now. अभी जैसा देखते ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्यों अभी जैसा नहीं था? Because nowadays what we see that एक कास्ट में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो उसी कास्ट के कहलाते हैं,
ठीक है, अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में उसके बेटा है, बेटी है, तो ऑल विल बिकम ब्राह्मण्स ओनली। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई वैश्या है, वैश्या मीन्स बिजनेस क्लास, ठीक है, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस क्लास जो है, उनके घर में जो भी उनके बच्चे होंगे या उनकी फर्दर जो जनरेशन होगी, दे विल बी वैश्याज ओनली। लेकिन जो पहले कास्ट सिस्टम चला करता था, उस कास्ट में क्या होता था, दी कास्ट वॉज अकॉर्डिंग टू दी वर्क। एक ही परिवार के कई सारे लोग अलग अलग काम जो करते थे, वो अलग अलग कास्ट के बन जाते थे। लाइक अगर किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली है, सो दे those people were known as Brahmins. In the same family, suppose one child has opted the work of this Rajput, like he went in the army. वो अगर आर्मी में चला गया है तो उसको राजपूत कहा जाता था। अगर कोई बिजनेस करने लगा सेम फैमिली में, तो ही वॉज नोन एज वैश्याज। और किसी को ये तीनों काम पसंद नहीं थे, एंड इफ दैट पर्सन ऑप्टेड द जॉब ऑफ सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा करने का काम अगर उसने शुरू कर दिया, तो वो शूद्र कहलाता था। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि सोसाइटी में ऐसी चीजों की वजह से डिफिकल्टी क्रिएट होने लगी। व्हाट वाज दैट डिफिकल्टी, कि जैसे एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे, तो आगे की जनरेशन को काम सीखने में डिफिकल्टी आती थी। ठीक है, अभी आप देखोगे कि आपके मम्मा पापा जो काम जिस तरीके से करते हैं, यू नोइंगली और अननोइंगली, आप जानबूझकर भी और अनजाने में उस काम को सीख जाते हैं। आपको पता है पापा इस काम को ऐसे ही करते हैं, एंड यू कम टू नो व्हेनेवर द टाइम विल कम, यू विल डू दैट वर्क इन द सेम मैनर। ठीक है, अगर मुझे खाना बनाना है और मैंने कभी खाना नहीं बनाया था, तो आई यूज टू रिमेम्बर माई मम्मा कि मम्मा कैसे बनाती थी, क्या क्या डालती थी, एंड आई विल कुक द फूड इन द सेम मैनर। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माँ को बचपन से वैसे ही खाना बनाते देखा था। सेम वे अगर मैंने अपने पापा को कोई काम करते हुए देखा है, तो आई विल लर्न ऑल दोज थिंग्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट। कोई भी मुझे अलग से ट्रेनिंग नहीं चाहिए उसके लिए, पापा का काम सीखने के लिए या मम्मा का काम सीखने के लिए। एंड इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट, अगर आपको कुछ और नया काम सीखना है, तब आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू डू दैट। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जिसके पापा जो काम कर रहे हैं, वही कास्ट सिस्टम बन जाएगा और उस फैमिली में वो बच्चे उसी काम को करेंगे। ओके, लेकिन लेटर ऑन वी फाउंड दैट एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वी चेंज्ड ऑल द थिंग्स। अब ऐसा नहीं है कि जिसके पापा ने जो काम किया वही उसके बच्चे भी करेंगे। नाउ वी आर गेट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। अब हम अलग अलग काम सीख लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मेरा बच्चा भी टीचर ही बनेगा। वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो बिजनेस भी कर सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि इफ आई एम अ टीचर, माय डॉटर और माय सन विल बी अ टीचर इन फ्यूचर। तो ऐसा अब कास्ट सिस्टम में है, अभी भी इंडिया में कास्ट सिस्टम है अभी भी, लेकिन अब हम इतने ज्यादा रिजिड नहीं हैं। दो in some cases we find that caste system is still prevailing in the society. आज भी हम छोटी जाति के लोगों को अपने साथ में बिठाकर काम नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते, उनको अपनी जगह प्लेस नहीं देते हैं, अपने साथ में बैठने के लिए रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज भी उसी तरीके से चल रही हैं as it was earlier. Okay, now coming to the next point, lower caste people were considered as untouchables. When India was not free or हाँ ये उन लोग गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था। यस वेरी गुड, हाँ हरिजन नाम दिया था। ठीक है, तो लोअर कास्ट लोग जो थे उनको अनटचेबल्स कहा जाता था, बिकॉज पीपल थिंक कि उनको छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग उनको अपने घरों में भी उनको घुसने नहीं देते थे, एंड दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी वेल्स आल्सो। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल्स। दे वर नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ अपर कास्ट इन स्कूल।
These children of lower caste or untouchables, they were made to sit in the end. Okay, या तो कोने में बिठा दिया जाता था या दरवाजे के बाहर बिठा दिया जाता था उनको, so that they will feel कि they are not like others, उनको ये सब उनसे अलग है और वो दूसरों से अलग है। तो इस तरीके से उनको ये ट्रीटमेंट दिया जाता था जिससे वो बहुत हर्ट होते थे। और इसमें जो अगर हम देखें कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने तो इस चीज को एक्सपीरियंस किया था बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, that was untouchable caste, caste of untouchable. Okay, माहर कास्ट से बिलोंग करते थे वो, और इसलिए उन्होंने इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि स्कूल में जब उनको एडमिशन मिला तो उनको दरवाजे पे या कोने में बिठा दिया जाता था। कभी ट्रेन में ट्रैवल किया उन्होंने तो ट्रेन के वो मतलब स्टेशन पे उनको किसी ने लिफ्ट घर तक छोड़ने के लिए कोई रेडी नहीं हुआ बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू दी लोअर कास्ट। इसी के साथ में उनके अगर बाल बनाने की बारी आती थी कि वो अगर हेयर कट लेना चाहें तो हेयर कट करने के लिए भी उनको मना कर दिया जाता था कि नहीं, हम हेयर कट नहीं देंगे। दो दे वर एबल टू पे मनी, ऐसा नहीं था कि वो गरीब थे, पैसे वो दे सकते थे, स्टिल पीपल वर नॉट, दे वर नॉट रेडी टू डू देयर वर्क। पीपल काम ही नहीं करना चाहते थे, क्यों? बिकॉज दे वर सपोज टू बी अनटचेबल। ठीक है, गांधी जी ने जैसा अभी वेदांश ने बताया, इन अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया, भगवान के लोग, हरिजन, हरि मतलब भगवान। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने ये कंडीशन भी रखी हुई थी, जब वो लीडर बने थे तो वो हरिजन की बस्तियों में जाके, जिनको आप भंगी बोलते हो या जो टॉयलेट्स क्लीन करते थे, अभी तो आपके पास फ्लश वाले टॉयलेट्स दिखते हैं, पहले ऐसे टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। तो दैट टाइम देयर वर पीपल हु यूज्ड टू कम टू दी हाउसेज एंड क्लीन दी टॉयलेट्स। ठीक है, वो दूसरों के टॉयलेट्स क्लीन करने आते थे। सो दे वर नोन एज अनटचेबल। तो उनकी बस्ती में जाके, उनकी मोहल्ले में जाके, उनके घरों के जहां वो रहते थे वहां पे उस कॉलोनी में जाके ही स्टेड देयर, गांधी जी वहां रहे और उन्होंने लोगों को बताया, लीडर्स को बताया कि दोज हु वांट टू मीट टू मी, जिसको मेरे से मिलना आना है उनको यहीं पे आना पड़ेगा। आई विल नॉट कम टू देयर प्लेसेस, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा या मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। इफ यू लव मी यू हैव टू टू दिस प्लेस। हाँ, यस बेटा। गांधी जी ने कहा ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हुआ है कि और कहीं भी हुआ है? I said one at a time, beta. I'm not able to understand you all. Yes. मैम ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हुआ है कि कहीं और भी हुआ है? Who is asking? Pranav. यस मैम। Again, beta. Repeat your question. मैम ऐसा सिर्फ अनटाउचेबल्स का सिर्फ इंडिया में हुआ है कि कहीं चाइना और अमेरिका में भी हुआ है? नहीं, बेसिकली क्या है कि हमारी कंट्री में ही कास्टिज्म को फॉलो किया जाता है, दूसरी कंट्री में ये कम मिलेंगे आपको कास्टिज्म। ठीक है, इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा, और किसी कंट्री में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, हाँ। एनीबडी एल्स तो वांट टू आस्क क्वेश्चन? और कौन पूछ रहा था? एक और भी कोई पूछ रहा था, वेदांश था क्या? शैल आई प्रोसीड फर्दर? ओके, सो गांधी जी ने कहा था कि अगर उनसे मिलना है तो उनके पास आना है। हाँ, उनको हरिजन की कॉलोनी में आना पड़ेगा। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर। तो ये सारे पुराने जमाने में जब ये कास्टिज्म हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा रिजिड था, एंड पीपल वर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड कास्ट, कास्ट से बाहर हम लोग जा ही नहीं पाते थे। हम लोग कास्टिज्म में इतने उलझे हुए थे कि हम ये सारी चीजों को फॉलो करते थे। एंड स्टिल इन सम ऑफ द फैमिलीज वी कैन सी दीज एग्जांपल्स नाउ आल्सो, पीपल मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देम। ठीक है, और लोग इन कास्ट वाले लोगों से, इन लोअर कास्ट के लोगों के साथ में डिस्टेंस मेंटेन करते थे। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते थे और अपर कास्ट के लोगों के साथ मिलकर या सामने से कहीं से गुजरते थे, तो दीज अपर कास्ट पीपल दे कम एंड दे, वो अपना शुद्धिकरण करते थे। दे यूज्ड टू टेक बाथ आल्सो। उन्होंने नहा लिया है, फिर से नहाएंगे, अरे अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध कर दिया। ठीक है, तो वो भूल जाते थे कि वही लोग उनकी दूसरे कामों में मदद करते हैं। इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टाइम, अगर आज भी हम इनको फॉलो करते हैं तो डू वी आस्क
अबाउट द कास्ट ऑफ द पीपल लाइक डॉक्टर्स, हम हॉस्पिटल जाते हैं अगर हमारी जान पर बन आई है, इफ वी आर इन नीड ऑफ अ डॉक्टर, डू वी आस्क देयर कास्ट? पूछते हैं क्या हम कि पहले अपनी कास्ट बताओ, इफ यू आर फ्रॉम अपर कास्ट देन ओनली विल बी टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम यू? पूछते हैं क्या? यस और नो? No, ma'am. पूछते, ठीक है। आप किसी पानी पूरी वाले के पास जाते हो, किसी चीज में आपको बड़ा इंटरेस्ट है, क्या आप जाते से ही पूछते हो पहले अपनी कास्ट बताओ तब मैं आपसे सामान लूंगा या लूंगी? No, ma'am. नो मैम। तो फिर हम छोटी छोटी चीजों में जहां जरूरत नहीं है फिर इस चीज को क्यों करते हैं, फिर हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, जबकि हमको पता है those who are discriminated by us, they feel hurt, they feel very bad, they feel disappointed, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, क्योंकि उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि इफ दीज पीपल विल नॉट डू दीज वर्क, then who else will do these work? Do we have this? उनके अलावा और कोई कर नहीं सकता, और वो भी इसलिए करते हैं because they are educated but still they are not getting job to earn money, to earn their livelihood beta. So they are means they are compelled, they are forced to do that type of job. किसी को भी टॉयलेट क्लीन करना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी सड़क पर झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन उनको पैसे चाहिए। किसी को किसी के घर का कचरा उठाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए उसको करने के लिए। एंड सपोज if these people will not do their work, who will do that work then? Nobody else, no? तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज अ काइंड ऑफ जॉब। कम से कम वो चोरी तो नहीं कर रहा है, कम से कम वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, ही और शी इज डूइंग वर्क, और उसके बदले में वो पैसे कमा रहा है। दैट इज ओनली अ वर्क विच हेल्प्स दैट पर्सन टू अर्न मनी, ठीक है। गांधी जी इसके फेवर में थे कि हमको काम सीखना चाहिए, बच्चों को काम काज आना चाहिए, स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, केवल इसीलिए क्योंकि हर कोई पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। आप अपनी क्लास में अगर एग्जाम्पल लोगे तो ऑल आर गुड एट स्टडीज? नहीं, सभी पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, कुछ ड्राइंग में अच्छे हैं, कुछ गेम्स में अच्छे हैं, कुछ भावना मैडम की क्लास में बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटेड चीजें बना लेते हैं। सो देयर आर वेराइटी ऑफ वर्क। सो इफ वी लर्न टू डू वर्क वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड in the future, we can support our family also. So it is not at all good to be discriminated by others, and it is not also good to discriminate others on the basis of their work. Now striving for equality. अब जो ये लोग थे, those who were discriminated by upper caste people, they started asking rights for equality. They started struggling for equality. struggle करना शुरू कर दिया उन्होंने, संघर्ष करना शुरू कर दिया। क्या संघर्ष थे और कौन कौन कर रहे थे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दैट डे वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। किसी ने बताया था कि ब्रिटिशर्स के टाइम में भी हमने मिलकर अगर काम नहीं किया होता तो वी वुड नॉट बी फ्री नाउ, ओके। तो हमने ब्रिटिशर्स के टाइम में जब देखा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, हमसे। आपने पिछली बार मैम आपने पिछली बार क्लास में बताया था कि वो ब्रिटिशर्स जब आए थे तब वो कहते थे कि हम लोग गोरे हैं तो गोरे लोग को भगवान ने भेजा, और वो काले हैं तो हमें राज करने के लिए। वेरी गुड, यू रिमेम्बर दैट, ओके। तो ब्रिटिश रूल के टाइम में हमने देखा कि वी वर नॉट इक्वल इन देयर आईज। इन द सेम टाइम मैम, हाँ, यस, एनीबडी एल्स? ओके, सेकेंड पॉइंट सी, दलित्स मीन्स दोज हु आर सप्रेस्ड, जिनको दबा दिया गया, जिनको समाज में हमने उठने नहीं दिया, जिनको हमेशा हमने नीचा समझा, दोज आर नोन एज दलित्स, ओके। सप्रेशन हुआ, जिनको हमने कभी भी ऊपर नहीं आने दिया। दलित्स, विमेन,
women were also treated in the same manner, like untouchables. Tribals, tribe, those who lived in jungles, peasants, farmers, okay, stood against inequalities because these people were facing inequality or discrimination by the society. They started struggling for the same. They wanted equality like others. Okay, they wanted those rights which others were having. लाइक दलित्स को हमने अपर कास्ट से नीचे समझ लिया, उनको अपर कास्ट की फैसिलिटीज नहीं दी, तो दलित्स जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया. सो दे वांटेड द राइट्स विद इक्वल टू अपर कास्ट. विमेन आल्सो वांटेड राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स, क्योंकि पुराने जमाने में औरतों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था. एंड इफ अगर पढ़ाया भी जाता था तो नॉट बियॉन्ड 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड. ठीक है, 5th या 6th क्लास से ज्यादा वो आगे पढ़े नहीं रहते थे, बिकॉज इन दी विलेजेस द स्कूल्स, small schools were there till 5th standard, so women or the girls used to go to that school only particularly. Later on they stopped studying, they stopped going school because the schools are far away from the places. जब दूर दूर schools होते थे तो उनके family members उनको भेजते नहीं थे, and so they used to get primary education only in their villages. तो विमेन को लगता था कि हम भी पढ़ लिख सकते हैं, वी वांट राइट इक्वल टू मेन. ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, दीज टू कम्युनिटीज, दे वर फाइटिंग फॉर दी राइट्स. व्हाट राइट्स? क्योंकि ये जो लोग थे इनके साथ में बहुत अत्याचार हो रहा था, और वो अत्याचार क्या था कि जब जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स ने इनको बंदी जैसा बना रखा था, एंड दे यूज्ड टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. ये उनकी जमीन पे काम किया करते थे और इनको उसके हिसाब से पैसे या कोई और चीज नहीं मिलती थी, या फिर इन्होंने कर्ज ले रखा था अपने जीवन को चलाने के लिए, लोन लिया हुआ था, उस लोन के लिए इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, विच दे वर नॉट एबल टू पे बैक. ये पे नहीं कर पा रहे थे. पे नहीं करने से क्या होता था, इनकी जनरेशन टू जनरेशन वो सबके सब उनके यहाँ काम किया करते थे. सो दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स और दी पीपल ऑफ अपर कास्ट, ताकि ये अपना जीवन जी सके. मैं 5th की EVS क्लास EVS में पढ़ा था, EVS बुक में, कि उसमें दिखा रहे थे कि वो जो लैंडलेस yes, good, yes, very good, you remember that also. Third point, see, Dr. Ambedkar fought for the rights of Dalits because he himself belonged to this community. ये दलित के ही उसमें कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे. he got higher education also, and he asked the people of his community to get education and do different types of work. ठीक है, इनको केवल यही सब काम करने पड़ते थे जो हमने अभी पीछे पढ़े. दूसरों की सेवा करने का काम, दूसरों के घर में साफ सफाई का काम, ठीक है, ऐसे उल्टे सीधे काम करने की वजह से इन्होंने अपने दलित कम्युनिटी के लोगों को ये बताया कि स्टैंड अप एंड टेक एजुकेशन, गो फॉर एजुकेशन, एजुकेट योरसेल्फ. अपने आप को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो दलित ना कहलाएं, एंड देन फाइट फॉर योर राइट्स. और इसके लिए इन्हीं लोगों के लिए इन्होंने भी लास्ट तक लड़ाई की, ताकि ये अपनी कम्युनिटी को इक्वालिटी दिला सके, राइट टू इक्वालिटी. So these people, they struggled hard to be equal in the society, to get equal treatment in the society. हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे आज भी ये जेंडर इनइक्वालिटी आपको मिलती है. लड़की और लड़कों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है घरों में. ठीक है, लड़की है तो उसको एजुकेटेड नहीं किया जाएगा, या जितनी एजुकेशन इजीली हो जाए. अगर लड़की सोचती है कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर,
आफ्टरवर्ड्स तो उसके लिए जरूरी नहीं है, बट अगर लड़का पढ़ता भी नहीं है तो उसके लिए फीस पे की जाती है कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जाए। तो जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी आज भी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है, एग्जिस्ट करती है। इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी, जेंडर इनइक्वालिटी। वीमेन गॉट राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। विमेन को आज जो बोला जाए कि गर्ल्स को हम देखते हैं कि आपके साथ में, बॉयज के साथ में इक्वल तरीके से पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं। एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट ऑफ दैट आल्सो कि जगह जगह गर्ल्स ने अपना नाम रोशन किया है, बिकॉज दे गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। और इस वजह से आप देखोगे कि वो जगह जगह अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार फेल हो जाते हैं ना तो उनको सेकंड चांस बहुत कम मिलता है, उनको सेकंड चांस बहुत कम दिया जाता है, बिकॉज दे आर विमेन, दे आर गर्ल। बट अगर इसी की जगह बॉय है या मेन है, सो दे वर गिवन चांस, दे आर गिवन चांस अगेन एंड अगेन टू कम अप टू दैट एक्सटेंट। ठीक है। जो कल्पना चावला थी उसके भी टाइम पे ऐसा ही था। हाँ, उसके कल्पना चावला के टाइम पे, उसके टाइम पे भी ऐसे स्कूल नहीं जाने देते। हाँ, ऐसी ही सोसाइटी थी, और वो तो हरियाणा से बिलोंग करती थी। वहां तो और भी कंजर्वेटिव माइंडसेट है बेटा, वहां के लोगों में तो और भी ज्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट है। ठीक है। हम लोग तो बहुत अच्छे घरों में रहते हैं और बहुत अच्छे घरों में पले बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपके पेरेंट्स का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो यू कैन डू एनी वर्क, एनीथिंग। नाउ आफ्टर, यस मैम, करनाल हरियाणा में लड़कियों को मारा क्यों जाता था? बेटा इसलिए बोला जाता है कि मतलब उनको, उनके लिए डावरी देने पड़ती थी, उनको पढ़ाना लिखाना, या दूसरी इसकी जब शादी की जाती तब उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। ठीक है। डावरी, डावरी मतलब दहेज। दहेज प्रथा जो है आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे है, और हम इससे दूर नहीं हो पाए हैं। दो वी हैव लॉज अगेंस्ट दिस, डाउरी के अगेंस्ट हमने लॉज भी बना लिए, रूल्स भी है, पनिशमेंट भी है, बट स्टिल वी आर गिविंग एंड टेकिंग डाउरीज। तो ये हरियाणा में ये इसीलिए है। ठीक है। हरियाणा क्या, इवन बिहार एंड उत्तर प्रदेश में भी ये आज भी एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटीज में, डाउरी सिस्टम। ना जब इंडिया आजाद हो गया, आजाद होने के बाद हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट, अ बुक ऑफ लॉज। ठीक है, कानून की किताब। समझ में आ रहा है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। और सारी कंट्रीज में ये रिटन नहीं है, इंडिया। हाँ, अभी बता रही हूँ। बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रिंसिपल सर ने भी बताया था। यस, वेरी गुड। ये है संविधान, इसको बोलते हैं विधान। विधान मतलब कानून। ओके। हमने अपने कंट्री को चलाने के लिए जो कानून बनाए हैं, जो लॉज बनाए, मैम वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा था। यस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ऑल आर रिटन इन दिस बुक कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इट इज अ डॉक्यूमेंट। यस बेटा। मैम, दुनिया का सबसे पहला रूल कौन सा था? पहला? मैम, अपनी कंट्री का सबसे पहला रूल कौन सा था? बेटा जब ये हमने डिसाइड किया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए, हमने आफ्टर फ्रीडम डिसाइड किया। ओके। तब तक हमने बहुत सारी कंट्रीज में ये सारी बातें देखी थी कि कौन कौन सी चीजों को हमने अपने कंट्री में नहीं लागू करना है, कौन सी चीजों को हमने दूसरी कंट्री के हिसाब से रखना है, और कौन सी अच्छी बातों को हमको दूसरी कंट्री से ले लेना है। तो जब हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए तो हमारे डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था। there were so many people belonging to different caste, religion, रीजन। ओके। जब इंडिया आजाद हुआ तो जब सबने ये मिलके, सारे लीडर्स ने सोचा कि वी नीड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स और रेगुलेशंस फॉर द कंट्री पीपल। लोगों के लिए, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके लिए हमें रूल्स रेगुलेशंस बनाना चाहिए ताकि हमारा कंट्री जो है अच्छे से काम कर सके। तो उन्होंने बैठकर कई लंबे समय तक डिसीजन लिए, डिस्कशंस किए, और ये एक ही जगह के लोग नहीं थे। सपोज अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ तो कि आपके स्कूल में क्या कैसे होता है,
ठीक है, तो यू नो अबाउट योर स्कूल ओनली, आपको सिर्फ अपने स्कूल के बारे में पता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा बताओ वंदना स्कूल में क्या होता है, अच्छा बताओ केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, विल यू एबल टू आंसर मी? नो मैम। नो मैम, व्हाई नॉट यू वोंट, व्हाई यू वोंट? हम उस स्कूल के बारे में जानते नहीं है मैम, हम उस स्कूल के बारे में जानते नहीं है। Yes, that's the answer. Because you don't know about that school. You are studying in this school and you know each and everything about this school, your school only. ठीक है, तो सेम चीज ऐसी थी, जो लीडर्स थे उन्होंने क्या, कौन सा ग्रुप बनाया, मोर देन 300 लीडर्स वर देयर, ओके, और सब कंट्री के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते थे, अलग अलग कास्ट के थे, और उनको ही पता था कि उनकी कास्ट में, उनके एरिया में, उनके स्टेट में कौन सी प्रॉब्लम है। So they sat together and they decided. वो एक साथ बैठे, उन्होंने डिस्कशंस किए और बारी बारी से करके हर एक जगह के बारे में कॉमन चीजों को लेकर रूल्स बनाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके साथ में ये रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी और कंट्री का डॉक्यूमेंट रिटन नहीं है, राइटिंग में नहीं है। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड वर्क। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, जिससे कि देश के लोग और देश काम कर सके। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस इज द पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। आपकी एसपीएल की हर एक बुक में आपको फर्स्ट पेज पे ये मिलेगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस चैप्टर के लास्ट पेज में भी आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट पेज मिलेगा। प्रीएम्बल का मीन्स होता है इंट्रोडक्शन। ओके, एवरीथिंग मीन्स अगर आप समरी देखना चाहो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज के बारे में है, तो यू विल गेट टू नो बाय रीडिंग दिस प्रीएम्बल ओनली। आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को ही पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, now let us see what is written in the preamble. Preamble, that is introduction. We means all Indians, the people of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. Okay, all these things are there in the constitution. Now coming to one by one, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी, सारे समाज को लेकर चलता है, प्रभुता संपन्न, अपने आप से, हमें पूरी सत्ता मिली हुई है, हमारे पूरा अधिकार है अपनी कंट्री पे, हम समाजवादी हैं, यानी हम पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर चलते हैं। हम सेक्युलर हैं, हमारे कंट्री में कोई भी धर्म ऊपर या कोई भी धर्म नीचे नहीं है, एंड ऑल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, देयर इज नो फाउंडेशन अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखोगे तो कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, बट इन आवर कंट्री वी कैन फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन एंड देयर इज नो रिलीजन ऑफ द कंट्री। कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। यस पर आज के जमाने में मैम बहुत लोग पाकिस्तान मुसलमान करते हैं। बहुत से लोग बहुत से लोग आज के जमाने में पाकिस्तान और ये सब दूसरे उसको धर्म को वो कहते हैं कि ये इंडिया में नहीं रहना चाहिए। नहीं, वो तो देखो जो कुछ लोग हैं, बिकॉज यू फाइंड पीपल ऑफ डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट थॉट प्रोसेस एवरीवेयर। आप अच्छे लोगों में भी ऐसे लोगों को देख सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि मेरे घर में सारे ही लोग अच्छे हैं, तो इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप सोचते हो कि प्रतिमा मैडम के घर में सभी उनके जैसे ही होंगे, तो इट इज नॉट लाइक दैट। यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ पीपल इन दी सोसाइटी। ठीक है, एक जगह के, एक कंट्री के सारे लोग ही अच्छे होंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। एक कंट्री के सारे ही लोग बुरे होंगे, इट इज नॉट लाइक दैट अगेन।
तो इसलिए कुछ लोगों की जो सोच है उस पे दूसरे लोग हावी हो जाते हैं, जिनकी सोच लिमिटेड होती है, कंजर्वेटिव होती है, बहुत ज्यादा छोटी सोच रखते हैं जो, ठीक है। इंडिया तो ऐसी कंट्री है जो हर एक को अपनी जगह बनाने के लिए जगह देती है। वी एक्सेप्ट ईच एंड एवरीवन। आप अपनी क्लास का एक छोटा एग्जाम्पल देख लो, अपने आसपास के नेबरहुड का एग्जाम्पल देख लो, अपनी कॉलोनी का एग्जाम्पल देख लो, यू विल फाइंड ऑल द पीपल लिविंग हैप्पीली एंड पीसफुली देयर। कभी कोई लड़ता है इस चीज को लेके? आपके घरों के बाहर या आपकी क्लास में कोई नहीं लड़ाई होती, बिकॉज वी आर नॉट ऑफ दैट माइंडसेट। लेकिन जहाँ पे लोग ऐसे होते हैं, छोटी सोच रखते हैं, वो दूसरों को भड़काते हैं, दूसरों का माइंड ब्रेन वॉश करते हैं और उनको अपने जैसा बनाने की सोचते हैं, ताकि घर स्कूल में या ये देश में लड़ाई होती रहे। सो इट इज लाइक दैट ओनली। इससे हम पूरी कंट्री को जज नहीं कर सकते बेटा, ओके। सो वो कुछ ही लोग हैं जो कि इस तरीके के इश्यूज को रेज करते हैं, बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है हमारी कंट्री में। देन डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, यानी हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोगों की सरकार है। लोगों की सरकार कैसे होती है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की सरकार, यानी लोगों को हर तरीके की छूट है। कैसी छूट है? आप देखते हो कि जब इलेक्शंस आते हैं तो आपके घर के जितने भी 18 ईयर्स से अबव लोग हैं वो सब वोट देने जाते हैं। वोट देने का मतलब होता है कि उन्होंने सरकार बनाने में अपना योगदान दे दिया। दे हैव कंट्रीब्यूटेड देयर राइट और देयर वोट टू मेक द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट को बनाने के लिए जब उन्होंने वोट दिया तो वो एक व्यक्ति ने सरकार नहीं बनाई है। किसने बनाई? पूरी कंट्री के लोगों ने मिलके बनाई है। और जब कंट्री के लोग पूरी सरकार मिलकर बनाते हैं तो क्या होता है कि कंट्री के लोग अपनी सरकार के गलत काम पे क्या करते हैं? उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं। ये हम आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, जिसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में, ओके। सो आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम फॉर दिस डिस्कशन। डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे लोग अपने लिए सरकार खुद से ही बनाते हैं। लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ओके। एंड रिपब्लिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं सब मिलकर एक कंट्री को बनाते हैं ना। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजों के साथ में जो इंडिया है उसने क्या क्या अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन में? जस्टिस दिया है लोगों को, न्याय दिया है। कौन सा न्याय है वो? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लेटर ऑन इन अदर क्लासेस, इन दी हायर क्लासेस, यू विल नो अबाउट these all things in detail. Okay, so we have justice in our country given by Constitution of India. हम किसी भी चीज के लिए अपने लिए न्याय मांग सकते हैं, हम न्यायालय में जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ ये इनजस्टिस हुआ है एंड हमको न्याय चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए। नाउ सेकंड वन इज लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। कौन सी? थॉट की, सोचने की। आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी बिलीफ को किसी भी विश्वास के हिसाब से चल सकते हैं। आप किसी में भी अपनी आस्था रख सकते हैं, कोई भी धर्म हो, किसी व्यक्ति में, और किसी भी देवी देवता को पूज सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। यू कैन वर्शिप एनी गॉड ऑफ योर चॉइस। तो इन सब चीजों की आपको छूट मिली, आजादी मिली हुई, लिबर्टी मिली हुई है। लेकिन एक्सप्रेशन और थॉट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का बुरा सोचें, उसकी छूट आपको नहीं है। क्यों नहीं है उसकी छूट? अगर वो छूट आप लेंगे तो वो वाले व्यक्ति इसकी छूट लेता है। दैट पर्सन विल ऑप्ट फॉर जस्टिस देन, ठीक है। इसलिए किसी को भी बुरा भला बोलने का एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन आपको नहीं है। आप अपने बारे में जो बोलना है बोले, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, that is your choice. Now equality also, we are equal in the eyes of the constitution. हम संविधान के सामने सब बराबर हैं, इक्वल है। तो हमको इक्वालिटी मिली है अपॉर्चुनिटीज की। सरकार की जो भी नौकरी है, जो चीजें भी सरकार हमें देना चाहती है, उन सब के लिए सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है,
ठीक है। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हम किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन हम आपस में भाईचारे की भावना रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हमारा देश एक क्यों है? क्योंकि हम में ये सारी चीजें हैं और हम फ्रेटर्निटी के हिसाब से रहते हैं। वी लिव अकॉर्डिंग टू द ब्रदरहुड फीलिंग। हम एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं, इसलिए हम कंट्री को एक रख सकते हैं, यूनाइटेड रख पाए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, दीज नीड टू बी फॉलोड बाय ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री एंड दे आर फॉर एवरीबडी हु लिव्स इन द कंट्री, हु आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। Now, leaders were aware about the ways of discrimination which had been practiced in our country, in our society. Just now I discussed. Leaders like Dr. Ambedkar fought for the rights of Dalits. Constitution बनाने वाले लोगों को ये सारी चीजों के बारे में पता था. So what they did, they set out a vision and goal in the constitution to ensure equality. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज को रखा है जिससे ये समझ में आए कि सभी लोग इक्वल हैं। ऐसी चीजें रखी जाएं जिससे सभी लोगों को इक्वालिटी समझ में आए कि हम सब एक दूसरे के बराबर हैं। नोबडी इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल आर इक्वल इन एवरीथिंग। इक्वालिटी इज द की वैल्यू दैट यूनाइट्स इंडियन। और ये की वैल्यू है, यही मेन थिंग है जो इंडियंस को अलग अलग होते हुए भी एक बराबर रखता है। क्या है वो? इक्वालिटी। विच इज द की वैल्यू दैट यूनाइट्स इंडियन? इक्वालिटी। ओके, रिमेंबर दिस, इक्वालिटी इज द की वैल्यू। इसलिए ना लड़का लड़की अलग अलग हैं, ना किसी भी जाति धर्म या कलर का कुछ फर्क पड़ता है। ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द आईज ऑफ द लॉ। Everyone has equal rights and opportunities. These are all what we have discussed according to the constitution. Untouchability has been abolished. अब हमारे यहाँ पे रूल बन चुका है कि abolish कर दिया गया, untouchability नहीं है। और that is why we can see all these examples that we all are living as a single family. People are free to choose the kind of work they wish to do. Just now I discussed government jobs are open to all and no one can restrict anybody for this. कोई किसी को ये नहीं बोल सकता कि ये जॉब तुम नहीं करोगे। The writers of the constitution said that respect for diversity was the main element in ensuring equality. If you respect others, then you will get respect, and this way we will be equal to each other. Therefore, India became secular country. Secular means no religion of India. All the religions are being practiced by the people in the country. So this is all about this chapter. Okay, in the next class we will discuss about the question and answer. So better go through the chapter first. Okay, मैं क्योंकि किसी से भी पूछ सकती हूँ किसी भी चीज का आंसर या क्वेश्चन. Okay, I am coming back. Chapter is over now. I hope you all have understood it. Okay. So let us end our class by Shanti Path. Join your hands better. Okay, do Shanti Path. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. If you have any doubt,